Hello, dear students. How are you all? This is Vijay Kumar welcoming you all in my new classroom. And today's topic is Reach for the Top, your chapter 8, Beehive. Today we will do its part 1, story of Santosh Yadav, a great inspiration for all of us, especially 9th class girl student. This lesson talks about success come to those who dare and do. जो हिम्मत रखते हैं, जो हौसला रखते हैं, कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं. रीच फॉर द टॉप, दे है ना, दोज पीपल रीच फॉर द टॉप. टॉप हियर नॉट ओनली मीन्स द माउंटेन टॉप कि हमने किसी पहाड़ की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली, है ना, माउंट एवरेस्ट पे चले गए हम, बट इट इज़ पिनेकल ऑफ ग्लोरी. संतोष रीच्ड बोथ द टॉप्स. यस, नॉट ओनली she scaled Mount Everest, the highest peak of the world, once but twice. Yes, जोनिया वास्की इस बेटी रेवाड़ी से जो है, हरियाणा से, इंस्पिरेशन है फॉर ऑल ऑफ अस स्पेशली गर्ल्स कि हाउ with her education, training and success as a woman mountaineer in a country like India where discrimination between boys and girls is rampant, much prevalent, especially in village community, where a girl being 16 early marriage का बात होने लग जाता है. She was born in such a society, but sheer motivation and her determination to do something big in life, she defied all odds, customs, traditions and prejudices to script her phenomenal success through her hard work. persistent work, आप देखना कहानी में. फोकस, हर फोकस ऑन गोल होना चाहिए हमारा भी. एंड मेंटल एंड फिजिकल टफनेस. एक एग्जाम्पल हैं वो संतोष यादव हमारे लिए, हमारे बीच में से ही हैं जो हु फॉलोड हर डिजायर्स, पैशन एंड अचीव्ड देम. यस, थिंक यू आर गुड एट what is it? Think at once. This is your passion. It can be your career in future after 6-7 years. So follow your passion is the message for you all 9th class students. Yes, she got fame. And she worked contrary to her name, contentment. नाम की संतोष थी, वो contentment नहीं था उसके अंदर. Always to do better और better और better. एक बार पहाड़ चढ़ के दोबारा भी चढ़ी वो माउंट एवरेस्ट को. Twice. She was also dissatisfied with traditional way of life, stereotypes prevalent in society, typical way of life. She said no, like these two, Chandro and Prakashi Tomar, you must have heard about. So today we are going to study this great lady, Santosh Yadav. Yes, can you think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize, जिसे आप है ना प्रशंसा करते हैं, जिसे आप इंस्पिरेशन मानते हैं, एडमायर करते हैं. बताइए. ये देख पा रहे हैं आइडल का मतलब अ पर्सन, है ना, फ्रॉम एनी स्ट्रीम बैकग्राउंड ही और शी कैन बी, है ना, हु इज़ एडमायर्ड और लव्ड बाय यू. है कोई पर्सन ऐसा, जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है, लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है, उनकी अचीवमेंट की. रोल मॉडल है जो आपके लिए, योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और एग्रीकल्चर. I request teachers to discuss their choices, है ना, with the students to find out who the top 5 idols of our class are. 9C और 9D भी ऐसा करें. तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेसन आपको. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. यस, जहाँ पर सन का पैदा होना ही ब्लेसिंग है. गर्ल हो गई तो ये कर्स है क्या? एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स. हालांकि इतनी भी नहीं थी सोसाइटी हमारी कि कर्स कहा जाए, बट जनरली शी वाज नॉट वेलकम. ये था व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष. जब संतोष की माता जी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो
a traveling holy man. What do you mean by holy man? You can see here word meaning है. You are supposed to write these word meanings also in your notebook. और आपको daily life में भी फिर इन्हें use करना है. Holy man. Holy man, a man who had devoted himself to religious practice. साधु कह सकते हैं आप, especially one who has absented himself from society to follow his religion. ठीक है, ascetic और saint कह सकते हैं आप. तो वो बोला, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन. एज्यूम्ड क्या होता है देखिए आप, कि टू एक्सेप्ट और बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो यू हैव नो प्रूफ. एज्यूम करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू बी ट्रू. उसने कहा कि शी वांटेड ए सन, उसने बोला, बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोल्ड चाइल्ड्स ग्रैंडमदर. उसकी दादी क्या बोली? एवरीवन सरप्राइज, सबको हैरान कर दिया. उसकी दादी ने बोली, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई. क्लोज बाई क्या होता है देखिए आप, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई मतलब नियर बाई. टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन. दादी क्या बोली? दे डिड नॉट वांट ए सन. द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड. इवन वो साधु भी हैरान हो गया, ये दादी क्या कह रही है ना. तो नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. उसने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट. डेस्टिनी क्या होता है ये देखिए आप, द थिंग्स दैट हैपन टू यू इन योर लाइफ, भाग्य है ना, स्पेशली थिंग्स यू कैनॉट कंट्रोल. तो डेस्टिनी होती है वो. तो डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स. वो पैदा हुई 5 भाइयों के बाद. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. शी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. यहाँ पर वो पैदा हुई. रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का एक ज़िला है, गर्व है हमें. द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष. नाम उसे संतोष दिया गया, नाम की संतोष थी. शी वाज, विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष का अगर डिक्शनरी मीनिंग ढूंढें तो कंटेंटमेंट है. कंटेंटमेंट क्या होता है देखिए, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन इज कंटेंटमेंट. लेकिन वो कंटेंट थी या नहीं आगे हम देखेंगे. बट वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी में कंटेंट नहीं थी. ट्रेडिशनल तरीका जो था जीने का वो नहीं जीना चाहती थी, ट्रेडिशनल. ठीक है, तो क्या कैसे वो डिफरेंट थी अदर से? शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. बचपन से ही. फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब यहाँ हम बचपन लेंगे. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. शॉर्ट्स क्या होता है ना, निक्कर्स कह सकते हैं आप. ए टाइप ऑफ शॉर्ट ट्राउजर एंडिंग अबव द नी दैट यू वियर इन हॉट वेदर लाइक वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. तो वो डाला करती थी, अनलाइक अदर गर्ल्स. लुकिंग बैक. लुकिंग बैक क्या है ये देखो आप, वर्ब के साथ है ना ये लगा हुआ है. तो इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं या कोलोकेशन कह सकते हैं आप इसको. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इन ए लैंग्वेज दैट हैपन्स वेरी ऑफन एंड मोर फ्रिक्वेंटली. दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कोलोकेशन कहते हैं. याद रहेगी ये टर्म आपको. लुकिंग बैक एक फ्रेजल वर्ब है और इसे हम कोलोकेशन भी कहते हैं. कोलोकेशन होता है कि हर भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जो हमेशा इकट्ठे लगा करते हैं. होली मैन, लुकिंग बैक, तो ये कोलोकेशन कहते हैं. वेरी ऑफन एंड मोर फ्रिक्वेंटली देन वुड हैपन बाय चांस, लाइक फास्ट फूड, पे अटेंशन, मेक एन एफर्ट, पावरफुल इंजन, फील फ्री. तो ये जो होते हैं कोलोकेशन होते हैं. 2 वर्डों का एक गुच्छा कह सकते हैं, बंच कह सकते हैं हम, ठीक है, पेयर कह सकते हैं. देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चॉज a correct and rational path, the others around me had to change, not me. कि अगर मैंने रेशनल पाथ लिया तो मैं नहीं, जो मेरे आसपास हैं उन्हें बदलना होगा. रेशनल क्या होता है देखिए, बेस्ड ऑन रीज़न, लॉजिकल बनना, सेंसिबल, लॉजिकल, देन इमोशनल. आपके डिसीजन जो है इमोशन के बेस पर नहीं होंगे, लॉजिकल होंगे तो आप रेशनल हैं. बेस्ड ऑन रीज़न होंगे तो आप रेशनल हैं. सेंसिबल होंगे आप रेशनल हैं. Yes, we have to be rational. That's why we are coming to school. 3, what says, let's see. Santosh's parents were affluent landowners. Affluent. What do you mean by affluent? Affluent mean having a lot of money. अमीर जमींदार घराना उनका था. Landowners. Landowner mean जमींदारा. Who could afford to send their children to the best school.
जिस स्कूल में इंडिया के मर्जी चाहें वो भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली में भी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई। रेवाड़ी से तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। क्लोज बाई, क्लोज बाई क्या होता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लोज बाई होता है वेरी नियर, नियर बाई। तो रेवाड़ी और दिल्ली ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इफ़ दे वॉन्टेड दे कुड, सो छोड़ सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जैसा परिवार में चला आ रहा था रीति रिवाज, प्रिवेलिंग कस्टम जो थे वहाँ पर इन लाइन विद होता है कि इन एग्रीमेंट, ये मुहावरा है, एडियम कहते हैं, ईडियम कहते हैं, है ना। इन लाइन विद, इन एग्रीमेंट विद द न्यू पॉलिसी इज इन लाइन विद द प्लान्स दैट वर डिस्कस्ड लास्ट ईयर, माई थिंकिंग इज इन लाइन विद माई योर्स। ये कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, मुहावरों को बदलते हैं वाक्य में, तो यहाँ पर भी इन लाइन विद का मतलब इन एग्रीमेंट विद, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया यहाँ से शुरू, द न्यू पॉलिसी इज इन लाइन विद, ठीक है। इन लाइन ये एक ईडियम है, मुहावरा है ये, ठीक है। तो जैसा था उन्होंने जो था इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम ऑफ फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू, टू मेक डू का मतलब होता है विद द लोकल विलेज स्कूल। टू मेक डू होता है, ये देखो, टू यूज़ व्हाट इज़ अवेलेबल ऑल्दो इट इज़ नॉट इनफ और व्हाट यू वांटेड। टू मेक डू मतलब काम चलाना, ठीक है ना, काम चलाओ सरकार कह सकते हैं आप। विद द लोकल विलेज स्कूल से उसने काम चलाया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। जब सही समय आया तो उसने स्ट्राइक भी किया। क्या किया उसने? एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16 पर तो आपको मालूम है क्या शुरू हो जाता है पेरेंट्स को, यस गर्ल अगर आप हैं तो यू नो व्हाट आई मीन। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट टू डू द सेम। ये 16 की होगी है, तेरा ब्याह करांगे, ठीक है, हाँ। तो अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। देखो वो विरोध किया उसने, प्रोटेस्ट किया उसने, ठीक है ना। रिबल थी वो बचपन से ही कि अगर तुमने मेरी जो है प्रॉपर एजुकेशन से पहले मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आप। आई वॉन्ट टू स्टडी, यस आई वॉन्ट टू गेट हायर एजुकेशन। शी लेफ्ट होम, उन्हें घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन डेली। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम of her plans to earn money by working part time to pay her school fees। नहीं फीस दोगे मैं यहाँ भर लूँगी, ठीक है ना, मैं साइड में कोई काम कर लूँगी। her parents then agreed to pay for her education but finally बच्चे को जब ऐसा देखा कि पढ़ना चाहती है तो चलो वो मान गई। wishing always to study a bit more देखो अब a bit more क्या होता है, एक फ्रेज़ है, ठीक है। यू यूज़ अ बिट बिफोर मोर और लेस, अ बिट लेस अ बिट मोर दोनों हो सकते हैं, टू मीन ए स्मॉल अमाउंट और मोर और ए स्मॉल अमाउंट लेस, ठीक है, ऐसे है। बिट मोर थोड़ा सा और बिट मोर। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। अर्ज जो उसकी राय थी कि मैंने और पढ़ना है, फाइनली वो धीरे धीरे तैयार हो गए, है ना। ए बिट मोर एंड ऑलवेज टू स्टडी, थोड़ा और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है। आप भी करते हैं ना ऐसे, तो वो बिट मोर यूज़ कर रहे होते हैं। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। तो हाई स्कूल पास करके 10वीं पास करके जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ पर उसको हॉस्टल में रहना था। संतोष रिमेंबर्स, यहाँ वो याद करती है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, है ना, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं दक्षिण हरियाणा में। तो आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल मैंने पहाड़, ठीक है, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। वैनिशिंग का मतलब देख सकते हैं आप, ये देखिए वैनिशिंग, ये एक ING लगा है, वैनिश के साथ वो जिरन बन गया है। वैनिश होता है टू डिसअपीयर सडनली और इन अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यस। तो वो देखती थी उन्हें गायब होता, उसके मन में भी इच्छा जागृत होती थी कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी पहाड़ पर चढ़ूं। वन डे आई डिसाइडेड, वो बता रही है, टू चेक इट आउट माई सेल्फ। चेक इट आउट क्या होता है, देखो आप, चेक इट मतलब लुक एट समथिंग, फाइंड आउट, हाँ, पता लगाना कि मैं भी देखती हूँ पहाड़ पे चढ़ के, मैं भी जाती हूँ, ठीक है। फाइंड आउट, चेक इट आउट मतलब फाइंड आउट माई सेल्फ। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। माउंटेनियर जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं उनको माउंटेनियर्स कहते हैं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने पूछा, शी आस्क्ड देम
if she could join them. To my pleasant surprise, they answered in an affirmative and motivated me to take to climbing. वो उन्हें अच्छा लगा, हाँ में जवाब दिया, अफर्मेटिव था उनका रिस्पॉन्स, पॉजिटिव था, उन्होंने मोटिवेट किया उसे. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, ठीक है, फॉर दिस डिटरमिन्ड मैंने धुन की पक्की, आप भी हैं दृढ़ निश्चयी यंग गर्ल. शी सेव्ड मनी and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. और बोलती है माई कॉलेज सेमेस्टर क्या होता है, आप सेमेस्टर जानते हैं आप? सेमेस्टर का मतलब होता है वन ऑफ द 2 पीरियड, साल का होता है ना, जैसे 1 साल होता है तो उसको 2 भागों में बांट देते हैं 6-6 महीने करके, उसको हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर कहते हैं. यानी कि वन ऑफ द 2 पीरियड दैट अ स्कूल और कॉलेज ईयर इज डिवाइडेड इनटू इज कॉल्ड सेमेस्टर. जैसा कि होता भी है, जब आप +2 के बाद जाएंगे ना तो वहाँ सेमेस्टर सिस्टम ही होगा आपके कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में. इन जयपुर एंड वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, ठीक है. एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, 21 तारीख को मुझे जाना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर नहीं गई कोर्स के बाद, बल्कि इंस्टेड मैंने की बजाय आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. आई हैड इट स्ट्रेट फॉर हैड इट स्ट्रेट फॉर ये एक मुहावरा है, ठीक है. टू मेक डायरेक्टली, मैं सीधा कहाँ चली गई, टू गो विदाउट डाइवर्जन, सीधा मैं कहाँ चली गई, उनके साथ होली, ठीक है. फॉर द ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ चली गई उनके साथ. आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी की चिट्ठी मैंने पापा को ज़रूर लिखी कि पापा मैंने आना था घर, आपसे प्रॉमिस था, लेकिन मैं सीधा जो हूँ यहाँ माउंटेनियरिंग जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है उसमें आ गई हूँ. आई एम सॉरी. विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. मैंने पापा को इवन बताया भी नहीं, एनरोल हो गई हूँ मैं, ये देखो ये पहाड़ चढ़ना सीख रही थी वो. देयर आफ्टर, नंबर 7 पैरा देखिए. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर and her climbing skills matured rapidly, right? Her climbing skills matured rapidly क्या होता है, in a fast और sudden way, तेजी से उसने जो सीखा सब कुछ, ये आप देख पा रहे हैं. also she developed a remarkable resistance क्या होता है, देखिए आप, resistance का मतलब होता है the power in a person's body not to be affected by disease, है ना, इम्यूनिटी, फाइट बैक अगेंस्ट समथिंग, तो उसका भी रेजिस्टेंस होता है. जब हम कुछ नया करने लगते हैं, टफ काम करने लगते हैं, बॉडी जवाब देती है, तो धीरे धीरे जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है. रिमार्केबल था वो, ठीक है. टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, तो उस ठंड में और एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड क्या होता है देखिए, द हाइट ऑफ समथिंग अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. अ प्लेस दैट इज हाई अबव सी लेवल इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, राइट. ये सब बच्चे वर्ड मीनिंग हैं, इंपॉर्टेंट हैं आप सबको. आपको नॉट ओनली मीनिंग बता रहे हैं, वर्ड्स भी बोल्ड किया हुआ है, आप सब ने नोटबुक पे लिखना है. 9C और 9D सार्थक स्कूल के सभी बच्चे ये सभी लिखेंगे क्वेश्चन आंसर के अलावा, राइट. इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील थी उसकी, है ना, लोहे जैसे इरादे थे उसके. तो फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. फिजिकल एंड्योरेंस क्या होता है, एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग, एंड्योरेंस कहते हैं उसे. एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्डशिप एंड एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में भी एक खिलाड़ी डटा रहता है, उसको एंड्योरेंस कहते हैं. आपने भी डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है प्यारे बच्चों. तो टफनेस. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, बार बार उसने अपने आप को साबित किया, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन के दौरान सबको, अपने ट्रेनर को. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क. कल्मिनेशन क्या होता है, एन एक्टिविटी, प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन एट द एंड ऑफ इट. कल्मिनेशन मतलब क्लाइमैक्स, अंत में, ठीक है, कल्मिनेशन कहते हैं उसे हम. एंड सिंसेरिटी केम इन 1992, फाइनली वो साल आया 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन देम. ठीक 4 साल बाद, जिस दिन उसने सबसे ये पूछा था कि क्या वो भी उसे ज्वाइन कर सकती है, तो 1988 की बात है ये. 4 साल बाद 92 आया और उसका ये रिमार्केबल ईयर साबित हुआ. एट बेयरली 20 years ऑफ एज, 20 साल की थी तब वो प्यारे बच्चों. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट.
स्केल, स्केल करना यहाँ देख पाते हैं, टू क्लाइंब अप ए हाई वॉल, है ना, दीवार ऊंची को चढ़ के जाना, द गेट से नहीं जाना, स्टीप ऊंची पहाड़ की चोटी पर, ऑफन यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट के साथ, उसको कहते हैं स्केल। ठीक है प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। ठीक है, ऐसा करने वाली। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, जो टीम स्पिरिट थी विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। फेलो क्लाइंबर्स मीन्स जो अपने आप के साथ जाते हैं, एक जना नहीं जाया करता है, पूरा का ग्रुप होता है ये। नंबर 8 में देखिए, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। साउथ कोल क्या होता है ये बता देते हैं आपको। साउथ कोल एक शार्प एज्ड कोल है। कोल मैंने होता है कि एला पॉइंट, ए लो पॉइंट बिटवीन, कोल होता है ए लो पॉइंट बिटवीन टू हायर पॉइंट्स इन ए लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन, दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा पहाड़। तो यहाँ पर एक साउथ कोल था, वहाँ पर जो हुआ था ऐसा, जहाँ पर एक उसका जो फेलो माउंटेनियर था, ठीक है ना। तो हालांकि शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, उसकी लाइफ वो बचा नहीं सकी, लेकिन शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह को उसने बचाया, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसके भी वही दुर्गति होती, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना करती तो मोहन सिंह भी जो है वही फेट होती, लेकिन उसने उसको बचाया। विद इन 12 months, 12 महीने बाद, संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। एक बार फिर से उसे इन्विटेशन मिला कि इंडो नेपलीज विमेन का एक्सपीडिशन जा रहा है, चलना है। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट एट सेकेंड टाइम। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। अनल्स में अपना जो है नाम उसने दर्ज कराया। अनल्स का क्या मतलब है देखिए आप, ऑफिशियल रिकॉर्ड को एनल्स बोलते हैं। एनल्स यानी कि एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ ईयर बाय ईयर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इस साल कौन कौन गए, इस साल कौन कौन गए, तो एक रिकॉर्ड बनता चला जाता है, उसे इंग्लिश में एनल्स बोलते हैं। राइट चिल्ड्रन, in recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation top honors, the Padam Shri। पद्म श्री उन्हें मिला, ये आप देख पा रहे हैं। And describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft." और फिर मैंने तिरंगा aloft किया। Aloft means something that is aloft is in the air or off the ground। जब मैंने तिरंगा फहराया वहाँ पर, तो the feeling is indescribable, है ना, उस बखान नहीं मैं कर सकती। इनडिस्क्राइबेबल विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल। मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे व्यक्त करूं उस क्षण को जब मैंने संसार की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, रीच फॉर द टॉप, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देश का झंडा है ना सबसे ऊंचा रखना। इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे गर्व था कि मैं भारतीय हूँ। देखो अपना प्यार अपने बारे में बता रही है। ऑल्सो अ fervent मैंने हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग। एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, उसकी फीलिंग थी एनवायरनमेंट के बारे में भी, कि उसने एक्सपीडिशन के दौरान 500 किलोग्राम का गार्बेज जो हिमालय से नीचे लाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी संतोष यादव। इन नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, तो आप लाइक का बटन दबाना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 9th क्लास में CBSE और हरियाणा बोर्ड में पूछे जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।